اس کے انداز سے چھیڑنے پر میرال سٹپٹا گئی، ایک دم سے گھٹن ہونے لگی۔ وہ اپنی قمیض کے گلے کو ہاتھ سے کھینچتے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا تنفس بڑھ چکا تھا جس کے باعث وہ ہانپنے لگی تھی، مگر قمر بیگم اور ثنا اس ڈبے سے وہ سوٹ نکالنے میں مگن رہیں۔ او مائی گاڈ، کیا سوٹ ہے یار! واہ میرال، کتنا پیارا ہے نا، دیکھو شہزادی لگو گی۔ قسم سے اس کے ڈریس کو دیکھ کے ثنا کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ سوٹ کو اٹھاتے اپنے سار لگائے اس کی شان میں قصیدے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ قمر بیگم بھی دیکھ کر حیران ہو گئیں، ان کی امی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا وہ۔ میرال جو چہرے کا رخ موڑے ان سے لاتعلقی اختیار کیے بیٹھی تھی، ایک سرسری نگاہ اٹھا کر جو دیکھی تو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ڈریس تھا! آج تک اس نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا، وہ صرف سوچتی تھی، مگر آج وہ اسے پہننے والی تھی۔ کبھی کبھی کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان صرف سوچتا ہے، مانگتا نہیں، لیکن اسے وہ بن مانگے مل گیا تھا جس کی کبھی اس نے خواہش کی تھی۔ بس فرق اتنا سا تھا، اب اسے صبر آ گیا تھا، اور پھر جسے صبر آ جائے اسے پھر ملنے کی خوشی نہیں ہوتی۔ میرال کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنی بدقسمت پہ رشک ہوا۔ ہاں، صرف چند پلوں کا کھیل تھا، اور اس کی آنکھیں دیکھتے ہی دیکھتے بھیگی اور بس برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اونچا اونچا روتی دھاڑے مار کر رو دی، اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ ثنا جو شیشے کے سامنے کھڑی حسرت بھری نظروں سے خود کو دیکھ رہی تھی، اس کی آواز سنتی فوراً پلٹی۔ قمر بیگم کی جان بے جان ہونے لگی۔ اسے ایسے روتا دیکھ وہ بھی رو دی۔ ثنا سوٹ کو سائڈ پہ رختی سے سنبھالنے لگی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے رونے سے کمرے کے باہر کھڑی گڑیا اندر آئی۔ ایک تو ان دونوں ماں بیٹی کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے، میں بھی کہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ان تینوں کو سر جوڑے روتا دیکھ وہ نخوت سے بولی، اور یہ شادی کی بات مجھ سے کیوں چھپائی گئی؟ ہاں، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کون سا اس کا رشتہ تڑوا دینا تھا؟ اچھا ہے مصیبت ختم ہوگی، اپنی منحوسیت لے جائے گی اس گھر سے۔ وہ جو بولے جا رہی تھی اس کی زبان کو بریک منور خان کی آواز پر لگی، وہ بھی اندر داخل ہوا۔ آج کل منور خان کی ٹیڑھی دم سیدھی ہو چکی تھی، یہ شاید فرضی ناٹک تھا۔ نہیں بتایا تو کیا ہو گیا، اب بتا دیتا ہوں، میرال کی شادی شیدے کے ساتھ طے کر دی گئی ہے، کل اس کا نکاح ہے۔ سن لیا یا کچھ اور پوچھنا ہے؟ منور خان کڑک آواز میں بولتا کمل بیگم سے مخاطب ہوا۔ کمل باہر آؤ اور آ کر سامان دیکھو، تم نے جو ضروری چیزیں کہی تھی وہ سب لے آیا ہوں۔ منور خان اپنی گھیتا باہر نکل گیا، اور ساتھ کمل بیگم بھی اس کی تقلید میں باہر چلی گئیں۔ گڑیا جس کے سر پر منور خان نے ابھی ابھی بم دھماکہ کر چھوڑا تھا، وہ ابھی تک اپنے کانوں پہ یقین نہ کر پائی تھی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میرال ثنا کے گلے لگے رونے میں مشغول تھی۔ گڑیا کا سکتہ ٹوٹا اور غصے میں آتی چلائی، کیا شیدے سے میرال کی شادی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ میرا ہے۔ نہیں نہیں، تم نے پھر سے چھین لیا مجھ سے۔ میرال، کیوں تم ہر بار ایسا کر کے مجھے اکساتی ہو کہ میں تمہاری جان لے لوں؟ مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ تم کیوں میری خوشیوں کی دشمن بن گئی ہو؟ تمہاری شادی شیدے سے کبھی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی زندہ۔ وہ غضبناک غصے میں آگے بڑھی۔ میرال اس کے تیور دیکھ ڈرتی ثنا کے پیچھے چھپنے لگی۔ ثنا جو ابھی کچھ سمجھتی، اس سے پہلے گڑیا نے میرال کو بازو سے دبوچتے آگے گھسیٹا، جو اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ میرال نے اسے بیڈ سے نیچے پٹک دیا۔ ثنا اس کو چھڑانے کو آگے بڑھی۔ گڑیا باجی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے میرال کو، آپ پاگل ہو گئیں؟ ثنا میرال کو میرال کا گلا گھونٹتے دیکھ اسے میرال سے دور کرنے لگی۔ میرال کا گلا گھونٹنے سے اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح پڑنے لگا، جیسے سارا خون اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ منحوس ہے، کلموحی ہے، یہ سب کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ بولو۔ وہ در پہ در میرال کو پیٹتے، اسے کوستے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ ثنا کو اس کے چھڑانا مشکل ہو گیا۔
वो इसको छोड़ दरवाजे की तरफ लपकी। आंटी आंटी जल्दी आए, गुड़िया बाजी मेराल को जान से मार देंगी, वो इसे मार रही है। वो इन्हें मदद के लिए पुकारती वापस आई। वो सिर्फ मेरा है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी इससे शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। कमल बेगम और मुनव्वर खान अंदर दाखिल हुए और मेराल को इसकी जारहाना गिफ्ट से छुड़ाया, जो आज इसकी जान लेने के दर पे थी। अपनी बेटी को कहो अपनी हद में रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुनव्वर खान, कमल बेगम चिल्लाई थी, औकात तुम्हारी बेटी भूल गई है, जो इससे शादी करने के ख्वाब सजाए बैठी है। इसने मेरा रिश्ता मांगा होगा, वो मुझसे प्यार करता है, ये शादी नहीं हो सकती। मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। वो गुस्से से पागल होती न जाने क्या क्या बोल रही थी, जब एक जोरदार थप्पड़ इसके 14 तबक रोशन कर गया। वो चकरा कर जमीन बोस हुई। बकवास बंद करो लड़की, ये शादी होकर रहेगी, और अगर तुमने मिराल को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और एक बार कान खोल कर सुन लो, और इस सब में मिराल का कोई कसूर नहीं। शीदे ने खुद मिराल का हाथ मांगा था, इसने तुम्हारे लिए इनकार कर दिया। मैं जानता था तुम इसे पसंद करती हो, इसलिए मैंने पहले तुम्हारी बात की थी, मगर इसने साफ इनकार कर दिया और मुक्कर भी गया। फरार चेहरे पर हाथ रखे साई साई करते दिमाग की साई ने सुन रही थी। आंखों से गर्म स्याल बह रहा था। यकीन शिद्दत से टूटा था इसका, इसलिए इस बात को तस्लीम करना काफी दुश्वार गुजरा था। कमल बेगम मिरार को संभालने लगी, जिस पर अब एक और इंकशाफ हुआ था। कल को न जाने कौन कौन से इंकशाफ होने बाकी थे इसकी जिंदगी में। इसका सर घूम रहा था। सोच सोच कर सनान दुपट्टे से इसका खून रोकने लगी। गले पर गुड़िया के नाखूनों और हाथ के निशान छप चुके थे। सर से खून रस रहा था। देखते ही देखते वो अपने होशो हवास खोती कमल बेगम की गोद में गिर गई। गांव की हर तरफ इलेक्शन के चर्चे आम होने लगे। इंतखाब होने वाले थे। बदर साहब इलेक्शन की मसरूफियात में मगन थे। दूसरी जानब पाशा ने इनकी पीठ पे हमले भी किए, मगर अल्लाह ताला जिसे रखे इसे कौन चखे। बदर साहब ने जाफर साहब को और जावियार को आने की इतला दी, मगर जाफर साहब ने कल आने से इनकार करके बहाना बना डाला कि कुछ मीटिंग है जिनमें मेरा और जावियार का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो वहां जाते तो एक हफ्ते से पहले वापस ना आ सकते। बदर साहब अपने साथ इस बार जावियार को भी ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर हाल में आने पर इसरार किया। कल बकोर जावियार कि इसका निकाह था और वो ये काम जितना जल्दी हो सके मुकम्मल करना चाहते थे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती चली गई। मिराल की शादी शीदे के साथ ऐसा भी क्या हो गया? इतनी खूबसूरत लड़की को रिश्तों में की कमी पड़ गई थी, या उम्र निकल गई जो इस बूढ़े के साथ शादी करना पड़ गई? आखिर मामला क्या है? कोई तो चक्कर है। किसी को कानो कान खबर ना होने दी इस कंवर ने, और बेटी का रिश्ता भी तय कर दिया। इतनी जल्दी शादी? ये खबर और इसका इंकशाफ सबके लिए काफी हैरत अंगेज साबित हुआ। जिस चीज को इस बात का इल्म हुआ, सब परेशानी में घिरे हुए थे। जैसे जैसे ये बात मोहल्ले वालों को पता चली, सब इनके घर इकट्ठे होने लगे। हर तरफ सर जोड़े औरतें चमगोइयां कर रही थीं। न जाने कौन कौन से झूठे सच्चे किस्से कहानियां गढ़ने लगी। अरे कमल बेटी को सामने लाओ, आज इसकी मेहंदी है ना, चलो। हमने सोचा हम जाकर यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखाएं, बच्ची महसूस ना करे बाप की कमी को। मोहल्ले की औरतें कमल बेगम को पास से सर झुकाए गुजरते देख इन्हें रोक के इस्तफसार करने लगी। भाई मुझे तो देखकर लगता है इन लोगों का मेहंदी करने का कोई इरादा नहीं था। देखो घर कैसे उजड़ा पड़ा है, लग ही नहीं रहा कि शादी का घर है। इर्द गिर्द बैठे खवातीन इनकी मौजूदगी पाती जमले जुमले कसने लगी। कमल बेगम, तुमने लड़की से तो पूछा था ना कि वो इस रिश्ते पर राजी है या नहीं, या खुद ही फैसला कर लिया? कमल बेगम चुपचाप सर झुकाए खड़ी इनकी सख्त कड़वी बातें सुनती रही। चेहरा शर्मिंदगी नदामत के बायस सुर्ख पड़ने लगा। काफी लोगों की बातें वो पहले भी सुन चुकी थी। कुछ लोग जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलते ताकि इनके ख्यालात भी किसी से मख्फी न रह जाएं। आखिर कोई इसे अपना पहला और जायज हक जो समझती हैं। हाँ हाँ हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी? भला आज के दौर में कौन खूबसूरत दिलकश लड़की है जो ऐसे रिश्ते पे खुशी खुशी रजामंदी जाहिर करेगी? जोर जबरदस्ती लगती है मुझे तो। कमल बेगम की अकब से आवाज आई, मगर वो फिर भी खामोश नहीं। सब्र के घूंट भरती सहती रही। चक्कर और ही लग रहा है इसकी बात।
दाएं जाने बैठी जोहरा बीबी बोली। कमल बेगम ने गर्दन मोड़ते इन्हें देखा। इस औरत के चेहरे पर तमस्खर उड़ाती मुस्कुराहट थी जो इन्हें अंदर तक सुगा गई। न जाने कितनी ही औरतें क्या क्या बोल रही थीं, जितने मुंह इतनी बातें। वो सर झुकाए लोगों की कड़वी जली कई तलक कलामी सुन रही थी। जब भी इनके हकम में आती सलमा बेगम ने इनके कंधे पर हाथ रखते इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कमल आपा, आप यहाँ हैं, आप जाकर मेराल को ले आए। मैं इतना बाहर की तैयारियां मुकम्मल करवाती हूँ। टाइम से मेहंदी की रस्म अदा हो जाएगी और ये बिन बुलाए मेहमानों का रश भी खत्म हो जाएगा। जाइए। सलमा बेगम की आवाज पे कमल बेगम चौंकती मुड़ी। वो दूर खड़ी कब से ये सब सुन और देख रही थी, इसीलिए पास आती किसी की इज्जत रखे बगैर इनके मुंह पर इन औरतों की बेइज्जती कर डाली। कमल बेगम सरहातीन की जानब चली गईं। सलमा बेगम ने इनके जाते पीछे बैठी औरतों को एक नजर देखा, जिनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्होंने इनके रंग में भंग का काम किया है। वो गुस्से से देख रही थीं, जबकि वो सर झटकते आगे बढ़ गईं। कमरे में आती फौरन दरवाजे को बंद करती आगे बढ़ी। सनाम, बात सुनो। कमल बेगम मेराल को देखने से गुरेज बरतते गोया हुई। मेराल को जल्दी से तैयार करके बाहर लेकर आओ। मोहल्ले की कुछ औरतें आई हैं, मेराल की मेहंदी की रस्म अदा करना चाहती हैं। इसे अच्छे से तैयार करना। वो एक नजर मेराल पर डालते कमरे से चली गई। मेराल नम आंखों से बंद दरवाजे को तकती रही। एक आंसू चपके से पलकों की बार से टूटकर टपकता रुखसार पर फिसलता चला गया। मेराल, चलो उठो, कपड़े बदल लो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। अभी तुम्हें तैयार भी करना है। सना अलमारी से इसके कपड़े निकालते हुए बोली। मेराल बेदर्दी से चेहरा रगड़ते उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ते सना के हाथों से कपड़े एक झटके से खींचते वॉशरूम में घुसते दरवाजा बंद कर दिया। सना इसके रवैये को देखकर हक खड़ी रह गई। मेहंदी की छोटी सी तकरीब रोनुमा हुई। सब औरतों ने रस्म अदा की। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसके चेहरे से नजर हट नहीं रही थी। रज कर रूप आया था। हालांकि अभी इसे ना तो उपटन लगाया था, ना ही कोई फेशियल ट्रीटमेंट दिया गया था। मेराल बहुत कम मेकअप करती थी, कभी ज्यादा तैयार नहीं हुआ करती थी। शादियों पर भी सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगा लिया करती। अल्लाह ने इसे हुस्न इस कदर अता किया कि किसी जेवर की या बनाओ श्रृंगार की जरूरत ही पेश नहीं आती। सादगी में भी हुस्न था। चेहरे की मासूमियत अब भी बरकरार थी, इसीलिए बेहद पुरकशिश दिलकश लग रही थी कि इसके चेहरे से निगाहें हटाना मुश्किल अमर था। आज इसे सना ने तैयार किया था। मेहंदी का ड्रेस जेब तन किए गजरे हाथों में और बालों में लगा रखे थे। इसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग काफी गहरा चढ़ा था। माथे पर लगी चोट को बैंडेज कर दिया गया था, लेकिन लोगों के पूछने पर कमल बेगम गड़बड़ा गई। इनसे कोई जवाब ना बनते देख सलमा बेगम ने कह दिया। सीढ़ियों से गिर गई थी। जैसे ही मेहंदी की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची, मेराल के कहने पे सना इसे फौरी तौर पर वहां से उठाते अंदर कमरे में ले जाने लगी। मेराल उठती तेजी से वहां से निकलती चली गई। मेराल का वहां बैठना, लोगों की बातें सुनते दम घुटने लगा। वो खुद को बहुत मुश्किल से रोक के बैठी रही, पर अब इसकी बस हो चुकी थी। कमरे में आते ही इसने झटके से अपना बाजू सना की पकड़ से छुड़ाया और गहरे गहरे सांस भरने लगी। सना दरवाजे को लाक लगाते इसके नजदीक आती अचानक से मेराल ने हाथ उठाते इसे अपने करीब आने से रोका। सना इसके इशारे पर फौरन पेशकदमी रोक गई। मुझे अकेला छोड़ दो सना। लेकिन मेराल, वो कुछ कहती आगे बढ़ी। लीव मी अलोन प्लीज। चली जाओ यहाँ से। इसे वहां से ना हिलते देख मेराल चलाई। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरी जान, खुदा के लिए। वो गुस्से से कहती अपने हाथ इसके सामने जोड़ गई। सना इसका गुस्सा देखकर चुपचाप कमरे से चली गई। मिराल को सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। इसका तनफ्फुस बिगड़ चुका था। इसने जल्दी से आगे बढ़ते गली में खुलती खिड़की का पट खोल दिया। ठंडी सर्द तरीन हवा का झोंका इसके जिस्म को छूता सनसनीखेज लहर पूरे बदन में दौड़ा गया। वो चुपके से बढ़ती नजरें खिड़की के बाहर काली अंधेरी गली में टकाए खड़ी हो गई। गली में किसी किस्म का कोई बल्ब मौजूद ना था जो हल्की सी रोशनी ही कर देता। कमरे के रोशन बल्ब की हल्की धीमी रोशनी खिड़की से बाहर निकलती गली को मध्यम सा रोशनी से आशना करवाती खैर बख्श रही थी। कमरे की रोशनी मेराल के ऐन अकब से गुजरती अंधेरी शब गली की सड़क पर इसका साया बना रही थी।
गरम गरम स्याल इसके चेहरे को भिगोता जा रहा था। आज इस घर में इसका आखिरी दिन था। कल वो अपने तमाम तर हकूक से दस्तबरदार होती एक ऐसे शख्स के नाम करने वाली थी जिसे जानती तक न थी, जिससे इस मोहल्ले का हर फर्द नफरत खाता था। अपने ऊपर एक ऐसे इंसान को दस्तरस हासिल करने देना कितना असियतनाक अमल था, कोई इससे पूछता। इसे मुसलसल वहां खड़े अंदाजा ना हुआ। कितना वक्त बीत गया। रात गहरी से गहरी होती जा रही थी, लेकिन नींद इसकी काली काली बड़ी गहरी आंखों से कोसों दूर थी। वो कब से अपना गम गलत करती अल्लाह को अपना दर्द सुनाती रही। बिलाकर रोते रोते इसके आंसू खुद ब खुद थम गए। अब तो ना आंखों का पानी भी खुश्क हो गया था, या शायद इसे अब सब्र आ गया था। इसने वक्त और हालात के साथ समझौता कर लिया था। चलती हवाओं के दोष पर खुद को छोड़ दिया। जिस भी हिम्मत ले जाए, इसे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब किसी भटकते इंसान की कोई मंजिल ना हो तो वो यूं ही अपना आप बेसहारा अधूरा छोड़ते रेत की मानद हवा के दोषों के संग उड़ता बिखरता कहीं खो जाता है। इसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। वो भी अपनी जात से अनजान बनने की कोशिश करने लगी। मामूली बेमोल चीजें जिनकी कोई वक़्त नहीं होती, इस दुनिया में अक्सर कहीं घूम जाया करती हैं। वो भी ऐसे ही कहीं गुम हो जाना चाहती थी। रात काफी गहरी होती अपने स्याह पर हर सिमत फैलाए हुए थी। ऐसे में एक बार क्लब में ऊंची आवाज में बजते गाने और इन गानों की धुन पर रक्स करते लड़के लड़कियां नशे की हालत में एक दूसरे के संग झूमते शोरगुल मचाते अपनी बेसुकून जिंदगी में कुछ लम्हे सुकून के हासिल करते वाहियात बेबाक हरकतें करते अपनी ही मस्तियों में मशगूल थे। इन सब से अलग थलग कोने में खामोशी से बैठा शख्स बहुत उदास था। ये इसका रोज का मामूल था। जब कभी वो यहाँ आता ऐसे ही चुपचाप एक जानब बैठकर इन लोगों को देखता। वो काफी थक चुका था, इसीलिए इस बड़े से सोफे पर नीम दराज होता सिगरेट नोशी करने में मसरूफ था। ब्लैक पैंट कोट जेब तन किए वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। आंखों में उतरी नींद और नींद से होती बोझल आंखें, इनमें उतरती लाली सच में इस वक्त इसे बेइंतहा पुरकशिश बना रही थी। लब हल्के से वाह किए जबरदस्ती खुद को जगाए नजरें सामने मरकूज किए गहरी सोच के समुंदर में गोता जन था। शॉपिंग मॉल से निकलते जैन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी को मोड़ते क्लब की तरफ जाते रास्ते पर गामजन कर दी। जाविया ने बहुत मना किया मगर इसने एक ना सुनी और इसीलिए सीधा क्लब पहुंचा। जैन के बकौल इसे इसकी शादी की खुशी को सेलिब्रेट करना था, लेकिन जाविया का कतई कोई इरादा ना था। इसीलिए जैन इसे वहां अकेला छोड़ता न जाने कहाँ चला गया। जाविया अक्सर दोस्तों के हमरा यहाँ आया करता था। यहाँ बहुत से लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते थे। जैन और जाविया सिर्फ इंजॉयमेंट करते और चले जाते। आज तक इसने कभी किसी लड़की के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखा था। हाँ, वो सिगरेट नोशी करता था, कभी कभार शराब नोशी भी कर लेता, मगर लड़कियों को इस्तेमाल नहीं करता था। ये खसलत इसके दोस्तों में जरूर थी। बहुत सी लड़कियां बिलावजह खुद को इसकी गर्लफ्रेंड बताती फिरती थी, जिनमें से एक एमन भी थी। जाविया इनसे दोस्ती तक महदूद रहता था, लेकिन वो खुद को न जाने क्या समझने लग जाती। जानबूझकर इसके साथ चिपकती, अपनी बाहों का एहसास इसके गले के गिद्ध बनाती, इससे हर तरह की लुभाने की कोशिश करने में कोशा रहती, जो इसे हरगिज पसंद नहीं था। बार में ऐसी कई लड़कियां अपने आप को वहां मौजूद मर्दों के सामने पेश करती, इनके साथ टाइम स्पेंड करती। जैन और जाविया क्लब में सिर्फ इन चीजों के नजारे ही किया करते थे। आखिर को वो भी मर्द थे, आदत से मजबूर, बस कभी उल्टा सीधा कुछ गलत ना किया, क्योंकि इसके नाम के साथ इसके बाप का और फिर खानदान का नाम जुड़ता था, जिसकी लाज इसने रखी थी। काफी अरसे से इसने यहाँ आना छोड़ दिया था। आजकल वो ऑफिस को संभालने लगा था, इसी वजह से वो इन चीजों से परहेज करता दूर रहने लगा था। आखिरी कश लेते सीधा हुआ और सिगरेट को जमीन पर फेंकते अपने बूटों तले दबाते बुझा दिया। इसने निगाहें ऊपर उठाई। इन आंखों में टूटी बेशुमार किरचियां थीं। आंखें लबालब भरी झलकने को तैयार थीं। इसे सामने का मंजर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। माजी की तल्ख यादें आज भूले भटके से न जाने कहां से आ गई थी, जो इस सब बुराई की वजह बन गई। हाँ, वो ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 10 साल पहले वो अपनी सो कॉल्ड माँ के साथ फैशन शो में शिरकत करने की गर्ज से गया था।
جہاں اس نے اپنی ماں کو بے شمار مردوں سے گلے ملتے ان کے سنگ ڈانس کرتے دیکھا۔ ہر طرف ڈرنکس چل رہی تھیں۔ اسے اپنی ماں کا کام بالکل پسند نہ تھا۔ راتوں کو دیر سے گھر آنا، کبھی کبھی ہفتہ بیت جانا، مگر ماں کا گھر نہ آنا۔ باپ صبح سویرے آفس کے لیے تیار ہوتا، نکل جاتا اور رات کو دیر سے آتے ہی سو جاتا۔ ان دونوں کی اس مصروف زندگی میں وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس اسے دینے کو پیسے ضرور تھے، مگر ٹائم نہیں تھا۔ وہ ایک کم عمر بچہ جسے ماں کی ممتا کی اشد ضرورت تھی، وہ اسے دستیاب تک نہ تھی۔ باپ کی شفقت سے محروم، آخر وہ اس کے بعد کیوں نہ ایسا بنتا؟ اپنی ماں کو بےحودہ لباس میں دیکھ کے اسے کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب کبھی وہ باہر جا رہی ہوتی، زاویہ ان سے ایک بات ضرور کہتا: موم، آپ پلیز یہ ڈریس چینج کر لیں، یہ آپ پر اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اپنے چہرے پر بے حد کی معصومیت لیے بو رہا تھا۔ ان آنکھوں میں نرمی ہی نرمی تھی، جن میں اب صرف غصہ ہی دیکھتا تھا۔ وہ اس کی بات کو سیرت سے نظر انداز کرتی چلی جاتی، یہ سوچ کر کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا پتا فیشن کسے کہتے ہیں۔ مگر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی، وہ چاہے چھوٹا تھا یا بڑا، تھا تو ایک مرد، جسے کم از کم اچھے برے کی تمیز تھی، پہچان تھی، جسے گھر کی عزت کا علم تھا۔ ہاں، وہ چھوٹا ہوتے ہوئے ایک بڑے سمجھدار مرد جیسی سوچ رکھتا تھا۔ دنیا کو وہ بھی دیکھتا اور سمجھتا تھا، بس زندگی ایسے ہی چلتی گزرتی جا رہی تھی۔ وہ اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ باپ سے کئی بار شکایت کی، مگر وہ بھی اسے خاموش کروا دیتے، کیونکہ وہ بھی سمجھوتا کر چکے تھے۔ ہاں، وہ سب جانتے تھے اپنی بیوی کے بارے میں، لیکن بچوں کی خاطر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ زاویہ ایک الگ طبیعت کا حامل تھا شروع سے، تھوڑا بہت غصے کا، تیز، ضدی، بے خوف۔ ان سب چیزوں نے اس کی حرکات و سکنات میں مزید بگاڑ پیدا ہی کیا۔ جب ماں باپ بچے کو اچھے برے کی تمیز نہ سکھا سکیں تو اکثر بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور زاویہ میں سے ایک تھا، جس نے کسی شخص کی آدھی پھونکی سگریٹ نیچے سے اٹھاتے چوری چپ کر کے پی لی۔ وہ دن گیا اور آج کا دن اس ایک برائی نے اسے مزید اس برائی کے دلدل میں اتار دیا، جہاں سے اب واپسی ناممکن تھی۔ یوں اس نے خود کو اور بہت سی غلط چیزوں سے روک کے رکھا تھا۔ اس میں تھوڑا ہاتھ اس کی بہن عنایا اور اس کی دادی کا تھا، جو اس پر توجہ مرکوز رکھتی تھیں۔ کم عمری سے جوانی تک کے لڑکپن کے سفر میں وہ دو اسے سنبھالے ہوئے تھیں، ایک اشک جھلملاتے ہوئے شدید ضبط کے باوجود۔ آنکھوں کے کناروں کی حدود سے نکلتا ہلکے سے اس کے رخسار پر پھسلتا چلا گیا۔ زاویہ اچانک سے چونکتا، فوراً سے چہرے کو اپنی شرٹ کے بازوؤں سے پونچھ گیا۔ اس نے ایک چور نظر اپنے چاروں اور دوڑائی، کہیں کوئی اسے ایسے روتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔